اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ لڑائی قلعے کے باہر ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا۔ پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاد کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیعہ کے مقابل رکھے اور ایاد رضی اللہ عنہ کو کچھ دستے دے کر دشمن کے دو سرداروں ابن حدرجان اور الاہم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو حسب معمول پہلوؤں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ چلی کہ ذرا بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی کوئی جواب نہ دیا تو دشمن نے ایاد رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو جو ہدایات دے رکھی تھی ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں رستہ دے دیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے گھوسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیعہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچھیاں ان کا راستہ روکتی۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو دو مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 عیسوی کے آخر جمادی الاخر 12 ہجری کے وسط کے دن تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جودی بن ربیعہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی۔ دومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علمبرداروں نے شکست پہ شکست دی اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عرب عیسائیوں کی تھی ان کے ساتھ تھے۔ آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا جیسے مہران بن بہرام نے عین التمر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر مدائن میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار بہمن جازویہ نے جب مہران بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ آتے دیکھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ مہران نے اسے کہا تھا، مت گھبرا بہمن، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی، میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوئی قبیلوں کی ہوئی ہے۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا، اور تو لڑے بغیر آ گیا ہے، تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جھولی میں ڈالا ہے، تو خوش قسمت ہے کہ تجھے یہاں سزا دینے والا کوئی نہیں۔ سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانشینی پر ایک دوسرے کے خون بہا رہے ہیں۔ مہران نے تنزیہ لہجے میں کہا، بہمن، کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے؟ کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں؟ اگر تو میدان میں جم جاتا تو آج مدینے والے یوں ہمارے سر پر نہ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی ہے، میری تعریف کر کے میں اپنے لشکر کو بچا کر لے آیا ہوں۔ میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے
लिए तैयार करेंगे। उस वक्त मदाइन में फारिस के जितने भी नामवर सालार थे वो सब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकस्त खाकर आए थे। उन्होंने इसे ज़ाती मसला बना लिया था, वरना वहाँ हुक्म देने वाला कोई न था। हुक्म देने वाले शाही खानदान के अफराद थे जो तख्त की विरासत के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। वो सालारों को भी अपनी साजिशों में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सालार फारिस की शहनशाही के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फर्ज समझते थे। ये चंद एक सालार ही थे जिन्होंने मदाइन का भरम रखा हुआ था, वरना किसरा की बुनियादें हिल चुकी थी और ये इमारत जमी बोस हुआ ही चाहती थी। उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मदाइन से कमोबेश 400 मील दूर दौमतुल जंदल में थे। आतिश परस्तों और ईसाइयों को अभी मालूम न था। वो समझते थे कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐनुल तिमर में है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दरअसल हीरा वापस आना था। एक तो वो मफ्तूहा इलाकों के इंतजामात वगैरह को बेहतर बनाना चाहते थे, दूसरे ये कि फौज को कुछ आराम देना था, और तीसरा काम ये था कि फौज को असर नौ नज्म करना था। एक तो ये मुजाहिदीन थे जो मैदान जंग में दुश्मन के आमने सामने आग कर लड़ते थे, दूसरे मुजाहिदीन वो थे जो दुश्मन के मुख्तलिफ शहरों में बहरूप धार कर खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ थे। वो जासूस थे। वो हर लम्हा जान के खतरे में रहते थे। वो दुश्मन की नक्लो हरकत और अज़ाइम मालूम करते और पीछे इत्तला भिजवाते या खुद इत्तला लेकर आते। तारीख में उनमें से किसी का भी नाम नहीं आया। उनमें बाज पकड़ लिए गए और दुश्मन के जल्लादों के हवाले हुए। उन जासूसों की बरवक्त इत्तलाओं पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कई बार दुश्मन के अचानक हमले और शिकस्त से बचे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब दौमतुल जंदल में थे तो मफ्तूहा इलाकों के लिए एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। मदाइन पर किसरा की शिकस्त और जवाल की स्याह काली घटाएं छाई हुई थी। लोगों पर खौफो हरास तारी था। किसरा की उस तलवार पर जंग लग चुका था जिसका खौफ बड़ी दूर तक पहुंचा हुआ था, मगर 2-4 सालार थे जो उस डूबती कश्ती को तूफान से निकाल ले जाने की कोशिशों में मसरूफ थे। इन हालात में एक घोड़ा मदाइन में दाखिल हुआ और बहमन जाज़ोया तक पहुंचा। बहमन ने पूछा, अब और क्या बुरी खबर रह गई है जो तू लाया है? कहाँ से आया है तू? क्या मुसलमानों का लश्कर मदाइन की तरफ आ रहा है? उस आदमी ने कहा, नहीं, मुसलमानों का लश्कर चला गया है। बहमन जाज़ोया ने तंजिया लहजे में पूछा, चला गया है? तू उन लश्करियों में से मालूम होता है जिन्हें मुसलमानों की दहशत ने पागलपन तक पहुंचा दिया है। क्या तू नहीं जानता तेरे जुर्म की सजा मौत है? ये आदमी घोड़े से उतर चुका था। उसकी इत्तला पर बहमन जाज़ोया बाहर आ गया। उसने उस आदमी को अंदर ले जाकर इज्जत से बिठाने के काबिल नहीं समझा था। सजाए मौत का सुनते ही उस आदमी ने घोड़े की बाग छोड़ दी और तेजी से आगे होकर सालार बहमन जाज़ोया के कदमों में बैठ गया। उसने घबराई हुई मुल्तजी आवाज में कहा, मैं ऐनुल तिमर से आया हूँ। बेशक मैं शिकस्त खाने वालों में से हूँ, लेकिन उनमें से भी हूँ जो शिकस्त को फतह में बदलना चाहते हैं। पहले वो बात सुन लें जो मैं बताने आया हूँ, फिर मेरा सर काट देना, लेकिन मेरी बात को टालोगे तो ये न भूलना कि तुम में से किसी का भी सर मुसलमानों के हाथों सलामत नहीं रहेगा। बहमन ने कहा, जल्दी बोल, क्या बात है जो मुझे इतनी दूर से सुनाने आया है? बहमन जाज़ोया की एक बेटी जो जवान थी, एक आदमी को अपने बाप के कदमों में बैठा देखकर करीब आ गई। वो देख रही थी कि जब से उसका बाप शिकस्त खाकर आया है वो गुस्से से भरा रहता है और सजाए मौत के सिवा और कोई बात नहीं करता। लड़की तमाशा देखने आई थी कि उसका बाप आज एक और सिपाही को जल्लाद के हवाले करेगा। ऐनुल तिमर से आए हुए आदमी ने कहा, खालिद इराक से चला गया है। मैं खुद नहीं आया, मुझे शमशेर बिन कैस ने भेजा है। आप उसे जानते होंगे। मुसलमानों के सालार खालिद ने ऐनुल तिमर पर कब्जा करके वहीं के सरकर्दा अफराद को अम्माल मुकर्रर किया है। उसका और बाकी सब हमला आवर मुसलमानों का सलूक मकामी लोगों के साथ इतना अच्छा है कि सब उनके वफादार हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौके की तलाश में हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। मैं खुद देख रहा हूँ कि मुसलमानों की फौज अचानक ऐनुल तिमर से निकल गई। बहमन जाज़ोया ने कहा, जरतुश्त की कसम, खालिद उन शिकारियों में से नहीं जो पंजों में आए हुए शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। क्या उसकी सारी फौज हमारे इलाके से निकल गई है? उस आदमी ने कहा, मैं पूरी खबर लाया हूँ सालार। ऐनुल तिमर, हीरा और दूसरे शहरों में जिन पर मुसलमानों का कब्जा है, मुसलमानों की बहुत थोड़ी फौज रह गई है और एक सालार है। मालूम हुआ है कि मुसलमानों का बड़ा लश्कर दौमतुल जंदल चला गया है, जहाँ उनकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है। शमशेर बिन कैस ने मुझे आपके पास इस पैगाम के साथ भेजा है कि ये वक्त फिर नहीं आएगा। इस वक्त अपने मफ्तूहा इलाके मुसलमानों से छुड़ाए जा सकते हैं। कुछ और सवालों जवाब के बाद बहमन जाज़ोया को यकीन हो गया कि ये आदमी गलत खबर नहीं लाया। बहमन को मालूम था कि दौमतुल जंदल कितनी दूर है और वहाँ तक पहुँचने और वापस आने में कितना वक्त लगता है। बहमन जाज़ोया ने उस आदमी से कहा, तुम वापस चले जाओ और शमशेर बिन कैस से कहना कि इतना बड़ा इनाम तुम्हारे नाम लिख दिया गया है जिसे तुम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते।
एक आदमी तुम्हारे पास ताजिर के रूप में आएगा, उसके साथ तुम्हारी बात होगी, वो तुम्हारा साइल होगा। हम बहुत जल्द हमले के लिए आ रहे हैं, अंदर से दरवाजे खोलना तुम्हारा काम होगा। बहमन की बेटी ने ऐनुल तिमर के सवार के जाने के बाद बहमन से पूछा, क्या हो गया है मोहतरम बाप, मुसलमान कहाँ चले गए हैं? बहमन ने बेटी को फरते मुसर्रत से गले लगा लिया और पुरजोश और पुरअज़्म आवाज में बोला, मेरी प्यारी बेटी, मुसलमान वहीं चले गए हैं जहां से आए थे। मैंने कहा था कि वो मदाइन तक पहुंचने की जुर्रत नहीं करेंगे। उन्होंने जो फतह हासिल करनी थी वो कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। अब मैं अपनी बेटी को मुसलमानों की लाशें दिखाऊंगा। बेटी ने बच्चों के से इश्तियाक से पूछा, कब? मुझे खालिद की लाश दिखाना मोहतरम पिदर। यहाँ सब कहते हैं कि वो इंसानों के रूप में आया हुआ जिन है। बहमन जाज़ोया ने बड़ी जोर का कहका लगाया। बहमन जाज़ोया का ये फातिहाना और तंजिया कहकहा पहले किसरा के महलात में पहुंचा, वहां से सालारों तक गया, फिर मदाइन की हजीमत खूरदा फौज ने सुना और फिर ये अहकाम और हिदायत की सूरत इख्तियार कर गया। बहमन जाज़ोया की बेटी ने अपनी तमाम सहेलियों और शाही महल की औरतों को और जिसके साथ भी उसने बात की ये अल्फाज कहे, मैं तुम्हें खालिद की लाश दिखाऊंगी। तकरीबन हर लड़की और हर औरत का रद्द-ए-अमल यही था। कहते हैं खालिद को कोई नहीं मार सकता, वो इंसान नहीं, उसे देखकर फौजें भाग जाती हैं। शाही अस्तबल में जहां शाही खानदान और सालारों के घोड़े होते थे, गहमा गहमी बढ़ गई थी। साइसों को हुक्म मिला था कि घोड़ों में जरा सा भी नक्स या कमजोरी देखें तो उसे ठीक करें या उसे अलग कर दें। बहमन जाज़ोया की बेटी इस तरह हर तरफ फुदकती फिर रही थी जिस तरह ईद का चांद देखकर नए कपड़ों की खुशी में नाचते कूदते हैं। वो अस्तबल में गई, वहाँ उसके बाप के घोड़ों के साथ उसका अपना घोड़ा भी था जो बाप ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था। उसने अपने खानदान के साइस से कहा, मेरे घोड़े का बहुत सारा ख्याल रखना। एक अधेड़ उम्र साइस जो 3-4 महीने पहले इस अस्तबल में आया था, दौड़ा आया और लड़की से पूछा कि अपनी फौज कहीं जा रही है या मदीना के लश्कर के हमले का खतरा है। लड़की ने कहा, अब तुम मदीने वालों की लाशें देखोगे। बाकी घोड़ों के साइस भी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे, वो भी ताज़ा खबर सुनना चाहते थे। लड़की ने उन्हें बताया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़ी सी फौज पीछे छोड़कर ज्यादातर फौज अपने साथ ले गया है और वो इराक से दूर निकल गया है। ये तमाम तर इलाका जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फारिस वालों से छीना था, इराक था। लड़की ने साइसों को बताया कि अब अपनी फौज पहले ऐनुल तिमर पर फिर दूसरे शहरों पर हमले करके उन्हें दोबारा अपने कब्जे में ले लेगी। अगर खालिद वापस आया भी तो उसे अपनी शिकस्त और मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अधेड़ उमर साइस ने मसरूर से लहजे में पूछा, क्या उसे जिंदा पकड़ा जाएगा? बहमन की बेटी ने कहा, जिंदा या मुर्दा, उसे मदाइन लाया जाएगा। अगर जिंदा हुआ तो तुम उसका सर कलम होता देखोगे। 3-4 रोज गुजरे तो ये अधेड़ उमर साइस लापता हो गया। उसे सब ईसाई अरब समझते थे, हंसमुख और मिलनसार आदमी था। सिर्फ एक साइस ने उसके मुताल्लिक बताया था कि वो कहता था कि वो अपने कबीले में वापस जाना चाहता है, जहां वो कबीले की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा। वो अपने खानदान के उन मकतूलीन का इंतकाम लेना चाहता था जो 2 जंगों में मुसलमानों के हाथों मारे गए थे। जिस वक्त शाही अस्तबल में उस साइस की गैर हाजिरी के मुताल्लिक बातें हो रही थी, उस वक्त वो मदाइन से दूर निकल गया। मदाइन से वो शाम को निकला था जब शहर के दरवाजे अभी खुले थे। उसके पास अपना घोड़ा था। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो ईसाई नहीं मुसलमान था और वो उसी इलाके का रहने वाला था जिस पर ईरान के आतिश परस्तों का कब्जा रहा था। वो मुसन्ना बिन हारिसा का छापामार जासूस था। उसने मदाइन में जाकर शाही अस्तबल की नौकरी हासिल कर ली थी। बहमन जाज़ोया की बेटी से उसने इराक से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके लश्कर की रवानगी और मदाइन के सालारों के अज़ाइम की तफसील सुनी तो वो उसी शाम मदाइन से निकल आया। ये इत्तला बहुत कीमती थी। सूरज ने गुरूब होकर जब उसके और मदाइन की शहर पनाह के दरमियान स्याह पर्दा डाल दिया तो उस मुसलमान जासूस ने घोड़े को एड़ लगा दी। उसकी मंजिल अंबार थी जहां तक वो उड़कर पहुंचने की कोशिश में था। जहां घोड़ा थकता महसूस होता वो उसकी रफ्तार कम कर देता। सिर्फ एक जगह उसने घोड़े को पानी पिलाया। अगले रोज का सूरज उफक से उठाया था जब वो अंबार में दाखिल हुआ और कुछ देर के बाद वो सालार ज़बरकान बिन बदर के पास बैठा हुआ था। वो हाँप रहा था। उसने हाँपते हुए सुनाया कि मदाइन में क्या हो रहा है। उसने सालार ज़बरकान से कहा, मैं उसी रोज आ जाता जिस रोज मुझे बहमन की बेटी से ये खबर मिली थी, लेकिन मैं वहाँ 3 दिन ये देखने के लिए रुका रहा कि दुश्मन क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं और वो सबसे पहले कहाँ हमला करेंगे। इस जासूस ने, जिसे तारीख ने एक जासूस लिखा है, मदीना की फौज के सालार ज़बरकान बिन बदर को जो तफसीली रिपोर्ट दी वो तारीख का हिस्सा है और तकरीबन हर मौरिख ने बयान किया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब ऐनुल तिमर से अयाद बिन गनम की मदद के लिए दौमतुल जंदल के लिए रवाना हुए तो ऐनुल तिमर से एक ईसाई अरब ने मदाइन इत्तला भेज दी कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इराक से चले गए हैं। उनकी मंजिल दौमतुल जंदल बताई गई। उससे मदाइन के तजुर्बाकार सालार बहमन जाज़ोया ने ये राय कायम की कि मुसलमान
दुश्मन तख्त ताराज और लूट मार करने आए थे और अपने कुछ दस्ते बराए नाम कब्जा बरकरार रखने के लिए पीछे छोड़कर चले गए और ये दस्ते जरा से दबाव से भाग उठेंगे। उस जमाने में अक्सर यूं होता था कि कोई बादशाह बहुत बड़ी फौज तैयार करके तूफान की मानंद एक के बाद दीगरे कई मुल्कों पर चढ़ाई करता और कत्लेआम और लूट मार करता, अपने पीछे खंडर और लाशों के अंबार छोड़ता जाता। वो किसी भी मुल्क पर मुस्तकिल तौर पर कब्जा नहीं करता था। मदाइन के महल में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के कूच के मुताल्लिक यही राय कायम की गई, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इराक में फारिस के जो मकबूजा शहर और बड़े किले फतह किए थे, वहाँ वो एक सालार और कुछ दस्ते छोड़ गए थे। ये सूरत हाल किसरा के सालारों को कुछ परेशान कर रही थी। किसरा के दरबार से हुक्म जारी हुआ, फौज को मदाइन से निकालो और हमले पे हमला करो। शेरजाद ने कहा, हम तैयार हैं। जो हाकिम साबात था और अंबार से मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागा था। महरान बिन बहराम ने कहा, जो ऐनुल तिमर का भगोड़ा था, हम बिल्कुल तैयार हैं। बहमन चाजुया ने, जो तजुर्बाकार सालार था, कहा, मगर लश्कर तैयार नहीं। शिकस्त तो उसने भी खाई थी, लेकिन उसने कुछ तजर्बा भी हासिल किया था। किसरा के उस वक्त के जानशीन ने कहा, क्या कह रहे हो बहमन? क्या हमने इस लश्कर को इसलिए पाला था कि शिकस्त खाकर हमारे पास भाग आए और हम इन सिपाहियों और कमांडारों को सांडों की तरह पालते रहे? बहमन जाजुया ने कहा, अगर इन सिपाहियों और कमांडारों को सजा देनी है तो आज ही कूच का हुक्म दे दें। अपने लश्कर की हालत मुझसे सुने। उसने अपने लश्कर की जो कैफियत बयान की वो मौर्रिखों और बाद के जंगी मुबस्सिरों के अल्फाज में यूं थी कि फारिस की इस जंगी ताकत के पुराने और तजुर्बाकार सिपाहियों की बेशतर नफरी मुसलमानों के हाथों 4-5 जंगों में मारी जा चुकी थी, या जिस्मानी लिहाज से माजूर बल्कि अपाहिज हो गई थी। खासी तादाद जंगी कैदी थी और लश्कर के जो सिपाही और उनके कमांडार बच गए थे वो ज़हनी माजूर नजर आते थे। 3 अल्फाज मदीना, खालिद बिन वलीद और मुसलमान उनके लिए खौफ का बायस बन गए थे। वो फौरी तौर पर मैदान जंग में जाने और लड़ने के काबिल नहीं रहे थे।